السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف کی آیت مارکہ 99 کو، 100 کو اور 101 یعنی کہ 101 تک کا ان 3 آیات کو اکٹھا سمجھیں گے۔ موضوع ایک ہی ہے، یاجوج ماجوج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ دیکھیں، جب یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا تو ان کی اکثریت کی کیا حالت ہوگی، یہاں پہ وہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن یعنی کہ جس دن ان میں سے بعض کو چھوڑیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ گھس جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا یعنی وہ اپنے علاقوں سے نکل کر حملہ آور ہوں گے تو اپنی اکثریت اور ساری زمین میں پھیل جانے کی وجہ سے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ گتھم گتھا ہو جائیں گی۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء آیت مبارکہ 96 میں اس کی وضاحت ہے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج ہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ اس سے مراد جب قیامت کے روز لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اور ان میں تعداد بہت زیادہ ہوگی، زلزلوں اور دہشت اور اضطراب کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دھکم پیل کریں گے، ایک دوسرے کو دھکا دیں گے اور وہ ڈھیروں ڈھیر ہو جائیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے رونما ہونے والے جنگی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ قرب قیامت کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا ظہور۔ اس سے ہم سب واقف ہیں لفظ سے، اور احادیث کی روشنی میں بھی اکثر نے پڑھ رکھا ہے۔ احادیث میں ان کے بارے میں ایسی خبریں بھی ہیں کہ وہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی پی جائیں گے، ہر چیز کو ہڑپ کر جائیں گے، عین ممکن ہو کہ وہ آدم خور بھی ہوں، ضرورت پڑنے پر انسانوں کو بھی کھا جائیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چینی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ، بچھو، کتا، بلی، چوہا، چھپکلی ہر چیز کھاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کثرت آبادی کے لحاظ سے بھی یاجوج ماجوج کی جو بیشتر علامات ہیں نا وہ چینی قوم کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ باقی واللہ عالم۔ یاجوج ماجوج کا جو یلغار کا نقشہ ہے نا، بیسیکلی وہ سورۃ الانبیاء میں آپ کو ملے گا کہ وہ پہاڑ کی طرف سے ڈھلوان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 196 میں بھی چین اور بھارت کی جنگ کے درمیان اخباروں نے چینی افواج کے حملوں کی جو تفصیلات بیان کی ہے نا، اس میں بھی کچھ ایسی ہی تصویر کشی کی جاتی تھی کہ waves after waves of Chinese soldier were coming down to spoil۔ تو یعنی کہ بہرحال جس طرح سے یاجوج ماجوج آج 2500 پہلے اپنے ملحقہ علاقوں کی مہذب آبادیوں کو طاقت و تاراج کر کے مطلب ان کو تباہ و برباد کرتے تھے، اسی طرح قیامت سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ پھر دنیا کی تباہی میں مچائیں گے اور ان کا ظہور ہوگا۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ آگے ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو جسمانی جسموں میں واپس لوٹا دیں گے، پھر سب لوگوں کو میدان قیامت میں جمع کریں گے تاکہ ان کے ساتھ اعمال کا حساب کتاب کیا جائے اور ان کے اعمال کا ان کو بہترین جزا دی جائے یا ان کو بتایا جائے کہ کیا سلسلہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نرسنگا ہے، قیامت کے دن اس میں پھونکا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے 2430۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ان کو ہم جمع کیا جائے گا
पूरी तरह से जमा करना अल्लाह ताला अपने तमाम इंसानों को मैदान हशर में जमा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को वाक़या सूरत वाक़या की आयत मुबारका 49 और 50 में बताया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना आप कह दें कि बिलाशुबा पहले और पिछले एक दिन मालूम दिन के मुकर्रर वक़्त पर यकीनन जमा किए जाएँगे। और फिर इस चीज़ को देखें हमने सूरत कहफ की ही आयत मुबारका 47 में भी पढ़ा था, यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्दा बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। हमने पढ़ा था ना इसको, आयत मुबारका 47 उसी आयत का तर्जुमा क्या है? और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएँगे और आप ज़मीन को बिल्कुल साफ मैदान देखेंगे और हम इन सब को जमा करेंगे, चुनाचे हम इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सूरत कहफ की आयत है। अगली आयत है वअरदना जहन्नम यौमइज़िल लिलकाफिरीन अर्दा। यानी यहाँ पे क़यामत के दिन जहन्नम को काफ़िरों के सामने लाया जाएगा, उसका ज़िक्र है। पूरी तरह सामने लाना। अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि वो रोज़े क़यामत काफ़िरों के साथ ये मामला फरमाएगा कि उनके सामने क़यामत को लाया जाएगा, यानी ज़ाहिर करेगा ताकि वो जहन्नम रसीद होने से पहले अपने अज़ाब को, अपनी सज़ाओं को अपनी आँखों से देखें और फिर उनको उसमें दाख़िल करने का भी बताया जाएगा ताकि वो उसी गम और हुज़न में मुब्तला फिर हो जाएँगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सूरत अन-नाज़िआत आयत मुबारका 34 और 35, 36 आप इसको पढ़ें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बड़ी प्यारी आयत है और हमने इसको बड़ी तफ़सील से पहले भी मेरा ख़्याल है पढ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा जाअत-तित्ताम्मतुल कुब्रा यौम तज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुरिज़तिल जहीमु लिमन यरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फिर जब हर चीज़ पर छा जाने वाली बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, जिस दिन इंसान याद करेगा जो उसने कोशिश की और हर शख्स के लिए जो देखता है उस पर जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को क़यामत वाले दिन लाया जाएगा, इसके 70,000 लगामें होंगी, हर लगाम पर 70,000 फ़रिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 2842। आगे से हम बढ़ते हैं अल्लज़ीना आयत नंबर का 101 अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन आन ज़िक्री व कानू ला यस्ततिऊन समअ। हक के हक से बहरे और अंधे लोगों के लिए ये जहन्नुम वहाँ पे इसका ज़िक्र है। वो लोग जिनकी आँखें मेरे ज़िक्र से पर्दे में थीं और वो सुनने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। जहन्नम वालों के लिए जो गफ़लत में मुब्तला होकर कबूले हिदायत को कबूल नहीं करते थे, इत्तबाए हक़ से अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे, तो यहाँ पे उसकी वज़ाहत है अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन आन ज़िक्री वो लोग जिनकी आँखें मेरे ज़िक्र से पर्दे में थीं। यानी जो लोग कुरान हकीम से रूगर्दानी करते हैं। देखिए सूरत हामीम सजदा में अल्लाह ताला ने इसको फिर इसी तरह से फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आयत नंबर 5 है, और उन्होंने कहा हमारे दिल इससे पर्दे में हैं, जिसकी तुम हमें दावत देते हो और हमारे कान में बोझ है। हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब है। तुम पर अमल करो, फिर तुम अमल करो, यकीनन हम भी अमल करने वाले हैं। लेकिन वो यहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है, लेकिन वो अमल नहीं करते थे ना। आयत में यही तो बताया गया है कि वो ज़ाहिर करते थे, लेकिन अमल से कासिर थे। यानी अल्लाह का ज़िक्र ये नहीं कि वो बस नमाज़, रोज़ा, तस्बीह, हज, उम्रे कर लिए तो हो गया, नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में किन-किन लोगों के साथ दीन के वाले मामलात अता फ़रमाए या अपनी मन-मर्ज़ी के मामलात अता फ़रमाए। अल्लाह की पैरवी की कि नहीं? अल्लाह के अहकामात को सुनकर उनके ऊपर अमल किया कि नहीं?
जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला के ज़िक्र से बहरे होते हैं, मज़ीद वो तस्बीहात, ज़िक्र वगैरह नमाज़ देखी जाएगी। तो अल्लाह ताला निशानियाँ दिखाएँगे अंधे होते हुए, वो हिदायत के रास्ते पर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं, वो अज़-ज़ुख़रुफ़ में 30 आयत 37 36 आयत में आप देखें इसके अंदर क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़ीज़ लहू शैताना फ़हुव लहू क़रीन। जो शख़्स रहमान के ज़िक्र से अंधा हो बन जाता है, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। चुनांचा वही उसका साथी बन जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप खुद सोचें कि अल्लाह उस ज़िक्र कुरान से हिदायत या नमाज़ रोज़े की पाबंदी ना करने वाले बंदे के साथ एक शैतान मुकर्रर कर देता है। फिर हमने सूरह अल बकरा में भी पढ़ा है हमने कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये पढ़ा है ना हमने कि उनके आँखें, उनके दिल, उनके कान सब कुछ क्या है? पर्दे में है। वो देखते सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उनको दुनिया छा गई है। जो लोग दुनिया में रहते हैं, उनकी आँखों की असली हकीकत को नहीं पहचान सकते। वो अल्लाह की याद से ही गाफ़िल होते हैं। वला व कानू ला यस्ततिऊना समआ। वो सुनने की भी इस्तात नहीं रखते। यानी वो अल्लाह की आयत जो ईमान वाले उन तक पहुँचाते हैं, कुरान और रसूल के साथ बुग़्ज़ रखते हैं। वो उसको सुनते हैं और कहते हैं बस अपने तक रखो ये बातें हमें ना सुनाओ। मतलब वो कुरान को सुनना नहीं चाहते। वो दुनिया में ऐश, पैसा, ज़ना, ज़िल्लत, नमोशी, उसका हक, बेटी का हक, माँ का हक, बाप का हक, माँ के साथ बदतमीज़ी, ये तमाम जायदादें, ज़मीन बटोरने में मसरूफ़ हैं। वो अल्लाह के अहकामात को नहीं सुनते। तो फिर क्या होता है? कुरान और रसूल के साथ बुग़्ज़ रखने की वजह से वो सुन ही नहीं सकते। दुनिया के अंदर बुग़्ज़ रखने वाले शख़्स के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दिल, उनके कान, उनकी आँखें ग़िलाफ़ में हैं। इस बात को गौर से सुनते ही नहीं। जब वो इल्म और भलाई के रास्तों से जब वो बेगाने हो जाते हैं, तब उनके पास सुनने के लिए कान तो होते हैं, ना देखने के लिए आँखें, ना समझने के लिए अक़ल ही नहीं होती। इसलिए फरमाया है क्या हमेशा क्या दुआ करें? अल्लाहुम्मा इन्ना वो हम जो दुआ सुबह-सुबह करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। बस उन्होंने अल्लाह ताला से कुफ़्र किया, तो अल्लाह उन आयात के ज़रिए इनकार करने वालों, उनके रसूलों को झुठलाने वालों, उसके लिए वो जहन्नम के मुस्तहिक करार दे दिया और अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं कि जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी वो दुनिया समेटने में लगे हुए थे। हकीकी मुसब्बिब अल असबाब से बिल्कुल फ़रामोश कर चुके थे अपने आप को। सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी, असबाब और वसाइल पर भरोसा करते थे और अच्छे खासे मुसलमान होके फिर कभी ये लोग अलग मज़हबों में ये दायरिया या हिंदू या वल्लाहु आलम क्या-क्या बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं दुनिया में इनकी सारी तको-दो मादी हो या माली हो, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगी। इसी मज़मून को अगले जो आखिरी रुकू अगला आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा ही सख्ती वाले अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं और उनको बड़े तीखे अंदाज़ से बयान किया गया है। उसके अंदर अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए कि उनके साथ क्या हशर होगा, हम इंशाअल्लाह अगले रुकू में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी गलतियों को कमियों को माफ़ फ़रमाए। जो गलतियाँ हुई अल्लाह उनको माफ़ फ़रमा दे, लेकिन हमें हिदायत के ऊपर मौत नसीब अता फ़रमा, ईमान के ऊपर ज़िंदगी अता फ़रमा, ईमान के ऊपर मौत नसीब अता फ़रमा, ख़ात्मा बिल ख़ैर हो, ख़ात्मा बिल ईमान हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।